right? So there's a very good news. Sketch School of Art and Creativity is organizing a 3 days master class. समझ गए? तो यार मिस तो बिल्कुल भी मत करना, एंड इट्स कम्प्लीटली free of cost. So we are organizing 3 days master class completely free of cost. Hi everybody, I hope all of you are doing well. So today's video is going to be a very important video for all the students who are giving JEE BARC examination in any year. Particularly अभी इस साल का attempt तो बस आने ही वाला है. It's just right on 24th, right? So I hope that this video would be quite helpful for you, and आपको पता चलेगा and एक idea मिलेगा, एक mind में clarity आएगी that how to proceed further, what to learn, what not to learn. Generally speaking, art education in India is very difficult अवेलेबल, आई वुड से. इतनी आसानी से आप बाहर जाओगे और आपको अच्छी आर्ट एजुकेशन मिल जाती है, ऐसा नहीं होता है. आई हैव पर्टिकुलरली नॉट रिसीव्ड अ वेरी गुड आर्ट एजुकेशन एनी वेयर आई हैव ट्राइड. आई हैव बिन ट्राइंग टू गेट अ गुड आर्ट एजुकेशन सिंस फॉर एवर, और कभी भी मुझे पता ही नहीं चला कि अच्छा चीज़ सीखा कैसे जाता है ड्राइंग में, या ड्राइंग में कुछ सीखना भी होता है, ये भी समझ में नहीं आता है. हमेशा मुझे बचपन से ये लगता था दैट इन द ड्राइंग पार्ट देर इज़ नथिंग टू लर्न, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस. बट आई वॉज so wrong. There is a lot of things in the drawing part that is very integral, and without learning that you can't actually get good drawings. No matter how much skilled you are, no matter how much practice you have done, if you are doing it in the wrong way, you will reach nowhere. ठीक है, आपको कहीं जाना है तो आपको वहीं का रास्ता लेना पड़ेगा, कहीं और का लेते जाओगे तो वहाँ कभी नहीं पहुँच पाओगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई नो इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न, बिकॉज यही जब पता नहीं होगा कि कुछ सीखना भी है तब तो क्या ही सीखोगे, समझ रहे हो? तो इन दिस वीडियो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गोइंग टू शो यू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट वर्क्स. आई एम गोइंग टू शो you how I teach the students, how we teach the students in Sketch School of Art and Creativity, and how all our students are able to get good ranks every single year. कैसे बच्चों के रैंक 1, 2, 5 ऐसे कैसे रैंक इतनी अच्छी आ जाती हैं ड्राइंग पार्ट में. स्पेसिफिकली अगर मैं आज की वीडियो में बात करूँ तो कैसे आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो इन द ड्राइंग पार्ट, and what are the things that you should strategize and learn. Okay, especially सबसे पहले कुछ भी start करने से पहले you should actually have an idea that what your competitors are doing, what other students are making and learning, so that you can surpass them, right? So that you can beat them, because this is a competitive examination and you have to get to the top, you have to know something different, you have to know what others don't know. तो अगर आपको जो बाकी लोगों को आता है बस उतना भी नहीं आता है, तब तो फिर कैसे आप रैंक 1 लाओगे, ठीक है? सो स्किल्स, प्रैक्टिस, knowledge, learning, everything is important when it comes to the drawing part. Only practice will not get you anywhere. So let us start with the video and let us see a lot of things कि किस टाइप के questions आ सकते हैं और आपको उसको सीखना कैसे है. और I will also tell you that how we particularly teach the students, and उस टाइप के sketches attain करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है? So without much introduction, let us come to the screen. So here you can see that JEE BARC examination में basically there are 4 types of questions which will be asked to you. Okay, first is perspective sketching, second is 2D composition, 3D composition and portraits. Now in perspective sketching, what perspective sketching is basically, if I try to show you on Google as well. So perspective sketching is basically a way to represent 3D objects on a 2D surface. So if you don't know perspective sketching, you won't be able to make any kind of sketch. So आप start बहुत basic से करते हो कि यार चलो ठीक है, 3 क्यूब्स को कैसे बनाते हैं स्केच में, रैंडम नहीं बनाते हैं, राइट? बिकॉज हाउ ह्यूमन्स सी एनी काइंड ऑफ फिगर or any kind of object, any kind of form is basically if you go to a railway station or a metro station, जो सामने वाला पार्ट है that is quite big, but at it goes backwards वो छोटा होता चला जाता है, राइट? यू ऑल मस्ट हैव नोटिस दिस. सो वाई यू डोंट मेक इट इन योर स्केचेस, and you don't make it, it's not your fault, because there's a specific way to make it, and that is something that should be learned. Okay, तो इस तरीके से पहले आप बेसिक ऑब्जेक्ट्स सीखते हो कैसे बनाना है, then you move towards difficult objects as well. You move towards how to make other objects like cubes and things and like that. बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हर चीज़ पर्सपेक्टिव में आपको बनाना आना चाहिए, समथिंग लाइक दिस.
ओके, देन यू गो टूवर्ड्स मेकिंग रूम्स. देन अगर आपके फिर आप इतना सीख गए कि यार इतना कैसे बनाना है, तो आप ईजिली फिर और भी डिफ़िकल्ट स्केचेस पे जा सकते हो. यू कैन कीप लर्निंग हाउ टू मेक एनीथिंग. तो बेसिकली इस नॉलेज के साथ आप कोई भी सिनारियो बना सकते हो. You don't require any kind of reference from Google. You can make anything which is there in your mind using perspective sketching. तो ये exterior में भी important है. You can say this is an exterior sketch. It is also there in 1 point perspective, and this is an interior sketch. दिस इज ऑल्सो देयर इन 1 point perspective. तो 1 point perspective में 2 point perspective में ये क्या होता है, कैसे होता है, इसकी तो कम से कम 4-5 घंटे की क्लास लगती है समझाने में, सिखाने में स्टूडेंट्स को, राइट. तो दिस इज़ अ वेरी टेक्निकल कॉन्सेप्ट विच आर्किटेक्ट्स आई थिंक will teach you in a more better way. In our institute we all are architect faculties are there. तो उसी वे में पढ़ाया जाता है, बहुत टेक्निकल वे में पढ़ाया जाता है और बहुत ही करेक्ट स्केचेस आपकी बन के आती हैं. आपको इनफैक्ट आप अपने स्केच में साइज़ तक पता होगा कि आपने जो टेबल बनाया है वो कितने साइज़ का बना हुआ है. इवन दैट यू वुड नो. सो देर इज़ नो चांस दैट यू आर गोइंग टू मेक रॉन्ग स्केचेस. यू विल बी मेकिंग करेक्ट स्केचेस, दैट टू फ्रॉम योर इमेजिनेशन. ठीक है, तो ये चीज़ आई थिंक आप समझ गए कि व्हाट इज़ पर्सपेक्टिव स्केचिंग. इफ़ यू टॉक अबाउट 2D कॉम्पोजिशन, बेसिकली काफ़ी लोगों को जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं ना, most of you will not even know why 2D compositions are asked in the examination. So first you have to understand that when you see any elevation, because elevation is a very important part of आर्किटेक्चर. तो जब भी आप कोई एलिवेशन डिज़ाइन करते हो, सपोज ये एलिवेशन आपने डिज़ाइन किया है व्हेन यू बिकम एन आर्किटेक्ट. एलिवेशन इज़ बेसिकली हाउ द हाउस विल लुक फ्रॉम द फ्रंट, ओके, एंड दैट इज़ अ 2D ड्राइंग. तो ये एक एलिवेशन है, ये 2D ड्राइंग होता है, इसमें कोई 3D पार्ट नहीं आता. यू कैन सी इट्स ओनली रेक्टेंगल, सिंपल रेक्टेंगल्स हैं ये, मतलब रेंडरिंग है इसमें, बट ये है तो रेक्टेंगल ही, इसमें 3D-नेस नहीं होती है एलिवेशन में. तो इफ़ यू वॉन्ट टू डिज़ाइन अ गुड एलिवेशन, यू शुड नो हाउ टू वर्क विथ लाइन्स, you should know how to work with shapes, you should know how to work with basic 2D shapes, right? Circle, rectangle, lines, curves, all those things. तो यही आपको अब डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे एग्जाम में कि चलो यार एलिवेशन बना के दिखाओ बिल्डिंग का, राइट? सो दे टेस्ट योर एस्थेटिक सेंस, दैट हाउ मच एस्थेटिक सेंस यू हैव टू बिकम अ गुड आर्किटेक्ट. तो वो आपसे जो क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर वो आपको बेसिक शेप्स देते हैं, लाइक these kind of shapes. Rectangles are given to you, basic triangles, circles, and if you're able to make a good aesthetic composition out of that, then that means that you are capable to become a good architect. समझ गए? तो ये चीज़ें इसीलिए 2D composition question आता है, ये भी लोगों को पता नहीं होता. ठीक है, 3D composition is basically you are using 3D shapes. So now as I told you that अगर आपको कोई बोले कि आपको यार एक स्क्वायर बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? ऐसे बना देते हो, आइसोमेट्रिक में बनाते हो, आइसोमेट्रिक स्केच में बनाते हो. दिस इज़ द रॉन्ग वे, बिकॉज यूजुअली हमें क्यूब ऐसा दिखता ही नहीं है, राइट? हमें क्यूब कैसा दिखता है, जैसा अभी हमने पर्सपेक्टिव में देखा, व्हेन यू जस्ट सिंपली प्लेस अ क्यूब ऑन द टेबल ऑल्सो, इट विल बी विजिबल टू यू समथिंग लाइक दिस. वो मतलब एक लाइन उसकी बड़ी होगी, पर जैसे जैसे वो हमारी आंखों से दूर जाएगा वो छोटा होता चले जाएगा. तो यू शुड मेक द थिंग्स विद टेक्निकलिटी. अगर आपको एक सिंपल रेक्टेंगल भी बनाना है, या सॉरी क्यूबॉइड भी बनाना है, तो यू हैव टू यूज पर्सपेक्टिव टेक्निक्स एंड कम अप विद गुड 3D कॉम्पोजिशंस. सिंपल. तो दिस कैन बी अ 3D कॉम्पोजिशन, राइट? बट ये कितना टेक्निकल है आप देख सकते हो. This is in 2 point perspective and it's very technical. So you have to understand the technicalities. But this is not the only thing. मतलब ये तो 10% है आपकी स्केचेस का, 10% ही है अच्छे मार्क्स लाने के लिए. तो मतलब अगर आपको 2 point या 1 point आता भी है, तब भी सिर्फ 10% ही चांस है कि आपकी रैंक 1 या 1 to 100 आएगी, बिकॉज इसके अलावा 100 और चीज़ें होती हैं विच यू हैव टू लर्न. ओके, देन कम्स द पोर्ट्रेट्स. तो हम लोग बहुत क्विक वीडियो में, बिकॉज अगर मैं आज की क्लास में, मतलब आज की वीडियो में मैं कितना भी बता दूँ, ये बहुत लंबी क्लासेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें छोटी छोटी जो सीखनी पड़ती हैं. इट इज़ नॉट समथिंग विच आई कैन जस्ट टेल यू इन वन वीडियो. एंड स्पेशली द ओनली वे टू टीच द स्टूडेंट्स इज़ नॉट द लाइव क्लासेस. मैं बेसिक चीज़ बता सकती हूँ,
वीडियो में भी बता दूंगी, यूट्यूब वीडियो में, बट स्टिल यू विल बी एट द सेम लेवल, because the only way to learn anything in drawing according to me is that I teach you something, suppose 1 point 2 point, you make it, you come to me, you show it to me on WhatsApp or class में, तो मैं सबसे individually discuss करती हूँ all the students. So when you are sitting in the class and when I'm seeing your sketch, I'm telling you the corrections that here you went wrong, then you will improve, not by seeing any video. You have to be pointed out in your sketches that this is where you went wrong. ठीक है. Now let's come one by one to all the things. So when you talk about perspective sketching, you can see these are all the things which you have to learn, and these are all the things which should be incorporated in your sketch, which is 1 point perspective, 2 point perspective, objects in perspective. तो basically ये तो आप समझ गए कि आपको टेक्निक की ज़रूरत है सीखने की. उसके बाद आप अपने दिमाग से कोई भी इमेजिनेटिव चीज़ बना सकते हो. आपको एक ज़रूरत नहीं है कुछ रेफरेंस लेने की. यू कैन सिंपली मेक एनी काइंड ऑफ scene, scenario, question. You can attempt anything just with your mind if you know perspective sketching, and it's a very powerful thing. तो ये तो आपने 3 चीज़ें सीखनी है. 1 point, 2 point, objects कैसे बनाने हैं. लाइट एंड शैडो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल लाइट एंड शैडो के भी प्रॉपर टेक्निक होते हैं. मोस्टली जो मैं बताऊँगी काफ़ी लोगों को ना पता ही नहीं होता है इन रिव्यूज़. तो दे टेल मी दैट मैम हमें पता ही नहीं चला कि ये सब भी चीज़ें सीखनी होती हैं. तो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, दैट यू शुड हैव द अवेयरनेस that these things are also important. Okay, so if I just show it to you how to make shadows. So shadows are also made using some techniques, which is perspective techniques again. तो ये तरीका होता है shadows बनाने का, proper तरीका होता है. ठीक है. So you have to take a light source, you have to take a shadow point, and then you have to take this proper techniques, और फिर आप proper shadow बना पाते हो. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ब्लू और रेड में ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. तो बेसिकली आपको सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ज्वाइन करके इस क्यूब का शैडो मिलेगा, जस्ट लाइक ओवर हियर. देख रहे हो, red and this green intersecting point was there, then here it intersected, here it intersected, and this is the shape of the shadow. तो अगर आपको ये शैडो के शेप्स नहीं बनाने आते हैं ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो आपका अच्छा 3D कॉम्पोजिशन नहीं बनेगा. Here you can see. So this exact shapes of the shadows, light and shadow is very important part of any drawing. उससे अपने आप ही drawing realistic और बहुत अच्छी लगने लगती है. तो this is something which you have to learn. You have to take efforts to learn it. There are proper technicalities. Again ये एक वीडियो की बात नहीं होती, इसमें बहुत सारी क्लासेस लगती हैं, बहुत सारे चीज़ें सॉल्व करनी होती है, बहुत कन्फ्यूजन भी आएगा. आपको सिर्फ अभी क्यूब का समझ आ गया, बट द मोमेंट इट्स अ डिफिकल्ट शेप यू विल अगेन कीप थिंकिंग कि अरे अब इसका कैसे बनेगा. देखो कितना टेक्निकल है ये, राइट. तो कहाँ से लाइट सोर्स लिया है, फिर कैसे शैडो बनाया है, कैसे इतना परफेक्ट आया है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड द मोमेंट यू हैव डन दिस इन द एग्जामिनेशन, आपको कोई मार्क्स लाने से रोक ही नहीं सकता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट नो दिस एंड यू नो दिस, सो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग गुड मार्क्स, राइट. सो द नॉलेज ऑफ लाइट एंड शैडो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज डेफिनेटली स्केल एंड प्रपोर्शन. कभी कभी हम रूम बनाते हैं तो उसमें कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा बेड रख देते हैं, तो दैट इज़ अगेन नॉट करेक्ट. यू हैव टू कीप योर ऑब्जेक्ट्स इन अ वेरी पर्टिकुलर स्केल. आपको साइज़ पता होना चाहिए. मैंने काफ़ी बार स्टूडेंट्स को क्लासरूम या ऐसे बहुत सारे स्केचेस बनाने के लिए दिए थे, तो दे यूज़ टू मेक अ वेरी बिग क्लासरूम वॉज देयर एंड दे यूज़ टू मेक वेरी स्मॉल टेबल्स इन द स्केच, तो वो गलत दिखता है. ठीक है. तो वो सारी चीज़ें, स्केल एंड प्रपोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ व्हाट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ योर टेबल, मतलब लेंथ और विड्थ का क्या प्रपोर्शन है, उसका साइज़ क्या है इन अकॉर्डेंस विद द रूम. ठीक है. कभी कभी स्केच में क्या होता है कि रूम तो बहुत छोटा है बट टेबल बहुत बड़ा बना दिया, तो दैट इज़ अगेन रॉन्ग. So you have to understand these technicalities of scale and proportion. Next very important concept is going to be human figures. Like any sketch without human figures is basically incomplete according to me, because you know when human figures are there in the sketch, suppose यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपको जैसे ये structure है, suppose this is a structure which is there, so without the human figures which you have made, you don't know the size of this structure. ये बहुत छोटा सा कुछ हो सकता है या बहुत बड़ा कुछ हो सकता है. So when you place a human figure in the sketches,
the entire relative size इज़ अगेन कमिंग टू द माइंड कि ठीक है ये साइज़ है इसका, अभी आपको पता है कि ये कितना बड़ा है बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन फिगर. अगर ये ह्यूमन फिगर नहीं होता तो यू वुड नॉट नो दैट व्हाट काइंड ऑफ साइज इज़ देयर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्केच. समझ गए. तो ह्यूमन फिगर्स इन द स्केचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन यू कैन सी दैट हाउ दीज पीपल हैव मेड द शैडोज. सो बेसिकली ये तो सिर्फ आपको बना के दिखाया है, बट ये बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है शैडो मेकिंग का, which is taught in our classes by architects, that how to take particular light source and how to draw shadows of any object which you have in your sketch. तो वो बहुत ज़्यादा important होता है, one of the things to make realistic sketches. समझ गए. तो human figures is again very important, how to make proportionate and good human figures. Design concept is, I think, आफ्टर पर्सपेक्टिव दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द डिज़ाइन कॉन्सेप्ट. अभी मैं आगे इसके बारे में बात करूँगी इन द स्केचेस. ओके, हाउ टू यूज़ कलर पेंसिल्स एंड हाउ टू डू पेन रेंडरिंग, नॉट पेंसिल, पेन रेंडरिंग. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स थ्रू सम एग्जाम्पल स्केचेस. ओके, सो हियर यू कैन सी अ स्केच ऑफ अ वॉशरूम. यूजुअली बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो सीखने के होते हैं, ये ऐसे ही आप नहीं बना लोगे पहले ही अटेम्प्ट में. यू हैव टू गिव एफर्ट्स, यू हैव टू टेक गाइडेंस अकॉर्डिंग टू मी. सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखने से आप नहीं सीख पाओगे. यू हैव टू कम एंड डिस्कस विद द फैकल्टी मेम्बर्स योर ओन स्केच, वेयर टू इम्प्रूव, मेक इट पिन पॉइंटेड दैट दिस इज़ द पार्ट वेयर यू शुड नीड you need improvement. तो यहाँ तब आप ऐसे sketches easily बना पाओगे. मतलब कोई reason ही नहीं है कि आप ना बना पाओ, चाहे आप किसी भी skill level पे हो, doesn't matter, right? So first of all आप देख सकते हो the sketches in one point perspective. ठीक है, तो सारे lines जो हैं वो एक ही point पे जा रहे हैं, यहाँ पे point बना भी हुआ है. तो that's how you know that the student has made it actually in one point perspective. You can see the point over here, right? तो आप जितने भी lines देखोगे ना वो सारे इसी पॉइंट पे जा रहे हैं. अब ये क्यों इस पॉइंट पे जा रहे हैं, क्या रीज़न है यहाँ पे पॉइंट लेने का, क्या रीज़न है कि ये कैसे बनाते हैं, व्हाट इज़ एन आई लेवल. ठीक है, क्या आई लेवल पे है ये, हाउ टू मेक इट, हाउ टू मेक एनी शेप इन वन पॉइंट पर्सपेक्टिव. दीज आर समथिंग विच यू विल लर्न ओवर अ कोर्स ऑफ आई थिंक एटलीस्ट 10 hours ऑफ लर्निंग ऑफ पर्सपेक्टिव स्केचिंग. बहुत टेक्निकल होता है, एटलीस्ट 10 hours ऑफ लर्निंग इज़ रिक्वायर्ड. कट शॉर्ट भी करूँ तो 5 hours की क्लासेस ज़रूरी होती हैं, राइट. तो देन आफ्टर लर्निंग इट आई एम अश्योरिंग यू दैट ये बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा. अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छा स्टूडेंट होगा, इसकी ड्राइंग अच्छी है तभी ये इतना अच्छा बना पाए, ऐसा कुछ नहीं है. एनी वन कैन मेक दिस लेवल ऑफ स्केच, यू हैव टू लर्न इट बेसिकली. ठीक है, तो ये तो हो गया टेक्निकलिटी. नेक्स्ट यू हैव ऑब्जर्वेशन. यू हैव टू ऑब्जर्व on internet, around you, anywhere you want to observe, but you have to see that inside a washroom what are the things which are required and why are they there. You have to think about it, you have to research about it, you can ask the faculty members, but observation बहुत ज़रूरी है. Like अगर washroom है तो walls पे tiling दिखानी ज़रूरी है. ठीक है, टिश्यू पेपर का एरिया होना चाहिए. बेसिकली अगर आप वॉशर दिखाना चाहते हो तो वॉशर होना चाहिए. बेसिकली ये सारी चीज़ें हमको पता तो होती हैं कि ये होता है वॉशरूम में, बट व्हेन इट कम्स टू द स्केचेस योर ऑब्जर्वेशन पार्ट इज़ मिसिंग. यूजुअली जब हम बेडरूम का स्केच बनाते हैं तो किसी के रूम में ट्यूबलाइट्स ही नहीं होती हैं, फ़ैन ही नहीं होता है. तो क्या किसी के घर में फ़ैन नहीं होता या ट्यूबलाइट नहीं होता? इट्स जस्ट मिसिंग इन योर स्केच. So that should not be missing. Anything which is there in reality should reflect in your sketch, and that will show to the examiner that you have a very good memory power, right? So this is the observation. And lastly, the design. When you see that this washroom is given for a 6-year-old child, this was the question. तो आप देखोगे कि कैसे वॉशरूम में स्टेप्स बनाए गए हैं ताकि उसकी हाइट का कंसिड्रेशन भी हो, कि उसका भी फुल हाइट नहीं है तो देयर इज स्टेप्स गिवन ऑन इन द वॉशरूम, राइट. देयर इज अ bathtub, there is a drawing on the tiles also which is there, or maybe a particular character which a 6-year-old will relate to. how minions का वो, तो ये minions के जो चीज़ें होती हैं ये बहुत relate करते हैं जो 6 साल के बच्चे होते हैं according to psychology, because they want everything on what they have seen on TV, तो so they relate with that. तो वो सारी चीज़ें देनी बहुत इंपॉर्टेंट है. कलर स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो बहुत सारी छोटी छोटी पॉइंट्स की वजह से स्पेशली दिस डॉट मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ माई एक्सक्लूसिव मेथड.
डॉट इज डिज़ाइन, ऑब्जर्वेशन एंड टेक्निक, राइट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, और इसको सीखने के लिए आपको समझना पड़ेगा टेक्निक क्या होता है और बात करनी पड़ेगी टू द फैकल्टी मेम्बर्स. मैंने बहुत बार ट्राई भी किया है कि मैं सिखाऊं स्टूडेंट्स को सिर्फ क्लास में, और जब मैं सिर्फ सपोज़ कोई क्रैश कोर्स होता है और इतना टाइम नहीं होता है स्टूडेंट से बात करने का, तो व्हेन आई टीच द स्टूडेंट्स, वो समझ तो सब कुछ लेते हैं बट बनाते फिर भी इतना अच्छा नहीं है. तो वो अच्छा तभी बना पाते हैं जब उनकी करेक्शंस को पिन पॉइंट किया जाता है, एंड दैट्स द ओनली वे टू लर्न ड्राइंग अकॉर्डिंग टू मी. आई हैव नॉट सीन एनी अदर वे दैट आप सीधा रिकॉर्डिंग्स देख के या कुछ भी यूट्यूब पे वीडियो देख के आप कभी अच्छी ड्राइंग नहीं सीख पाओगे. आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी, वो भी इंडिविजुअल लेनी पड़ेगी, वो ग्रुप में भी गाइडेंस नहीं हो सकती. सो दैट इज़ वाई इन आवर बैचेज ऑल्सो वी कीप ओनली 20 स्टूडेंट्स इन वन बैच, नॉट मोर दैन दैट. ओके, नाउ हियर ऑल्सो यू कैन सी अ लिविंग रूम स्केच. तो मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना कि आपको इस लिविंग रूम स्केच में क्या चीज़ें डिफरेंट लगी. ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो काफ़ी डिफरेंट हैं. काफ़ी ऑब्जर्वेशन वाइज इट्स अ वेरी गुड स्केच. डिज़ाइन वाइज ऑल्सो इट इज़ गुड, इट कुड हैव बिन बेटर डिज़ाइन वाइज, बट ऑब्जर्वेशन वाइज इट्स वेरी गुड. डिज़ाइन वाइज ऑल्सो इट्स गुड, लाइक देयर इज़ अ पार्टीशन ओवर हियर, बहुत डिफरेंट लग रहा है. एक विंटेज सा इफेक्ट आ रहा है, तो वो कलर्स की वजह से आ रहा है. व्हाट इज़ द कलर स्कीम विच हैज़ बिन यूज्ड. तो बहुत न्यूट्रल कलर्स हैं बट सोफ़ा ब्लू कलर का है, तो बहुत पॉपिंग इफेक्ट आ रहा है अगेन, राइट. डिज़ाइन इज़ गुड, इट्स इन वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, राइट. एंड स्पेशली आप जितने भी स्केचेस देखोगे मेरे स्टूडेंट्स के, तो हर स्केच में वो यूज़ होता है माइक्रॉन पेन. सो दैट इज़ समथिंग विच आई रिकमेंड ऑल द स्टूडेंट्स टू यूज़. मैं पेंसिल स्केचेस नहीं रिकमेंड करती हूँ एग्जाम में बनाने के लिए. दिस इज़ माई वे एंड ऑल माई स्टूडेंट्स वुड मेक स्केचेस लाइक दिस ओनली. तो आप देख के रिकग्नाइज कर सकते हो दैट ये मेरे स्टूडेंट का स्केच है, ठीक है. तो हियर दिस इज़ अ किचन अगेन, एंड किचन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. रेफ्रिजरेटर शुड बी देयर, OTG लाइटिंग्स शुड बी देयर, शेल्व्स शुड बी देयर, अ स्पेस बिटवीन द फ्लोर एंड शेल्फ शुड बी देयर. क्योंकि अगर यहाँ पे ये ब्लैक वाली स्पेस अगर ये नहीं होगी तो फिर किसी का भी पैर ना, आप कोई पैर यहाँ पे रखेगा तो वो टकराएगा बार बार. तो देयर शुड बी अ स्पेस बिटवीन द फ्लोर एंड द शेल्व्स. क्लीनिंग के लिए भी बहुत ईजी रहता है, ठीक है. तो सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं विच यू हैव टू लर्न इन द डिज़ाइन पार्ट. ऑब्जर्व आपको करना पड़ता है कि आपके घर में क्या है, फिर आप उसको स्केच में बनाओ. एंड टेक्निकलिटी तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज़ अगेन अ लिविंग रूम. दिस इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. लुक एट द शेप ऑफ द एग, लुक एट द सेंटर टेबल डिज़ाइन, लुक एट द पार्टीशन डिज़ाइन, वेरी इंटरेस्टिंग. सर्कल है यहाँ पे, अगेन कर्व्स हैं. Look at the wall design, glass walls are there, mezzanine flooring is there, this is the mezzanine flooring, okay. और पेंटिंग्स भी बहुत इंटरेस्टिंग सी लगा रखी हैं. वॉल का ब्लू ब्रिक कलर है, तो एवरीथिंग इज़ यूनिक. एंड यही डिज़ाइन, इसमें डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा. पिछले वाली स्केच में ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा था इन दोनों स्केचेस में, इसमें डिज़ाइन बहुत अच्छा है. ऑब्जर्वेशन भी है एंड टेक्निक इज़ ऑल्सो देयर, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, ओके. Next is again the inside view of a pencil box is there, the ant view of a pencil box in one point perspective. तो इन टाइप की चीज़ें भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं. इन दिस पर्टिकुलर स्केच इंडोर आउटडोर रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप किसी भी रूम के अंदर बैठे हो तो उसका आउटसाइड व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके. Okay, now I'm just going to show you a few things again. This is the solution of a kite festival which was drawn by one of our students and 2-point perspective में है. एक बालकनी व्यू के साथ काइट फेस्टिवल का सीन देखा, तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल व्यू विच ही हैज़ कैप्चर्ड. एंड अगेन in every sketch of our students we tell them to make some unique designs. तो चाहे वो प्लांट का हो या चाहे वो रग डिज़ाइन हो, चाहे वो मैचिंग कुशन्स हो, या you know in these kind of lightings and the vertical garden. तो all these kind of design is taught to the students because कि हम architects सिखाते हैं in our institute, so that is why architects teach the students in their way which is going to be beautiful and going to be as per the new trends. तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहती है और आप यूज़ करके आते हो एग्जामिनेशन में, and there you get more marks. ओके, दिस इज़ अगेन अ रेस्टोरेंट स्केच. इसको पॉज करो और एक बार देखो कि क्या चीज़ें यूनिक हैं अपार्ट फ्रॉम 2-point पर्सपेक्टिव, ओके. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न बेसिकली. ये अगेन अ रेस्टोरेंट स्केच, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ रेस्टोरेंट स्केच, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टीशंस
which is there. Okay, next is 2D composition. For 2D composition you don't have to use your skills very much. इसमें skills का इतना play नहीं होता है, इसमें theory बहुत पढ़नी पड़ती है. तो if you don't know till now कि इसमें theory पढ़नी पड़ती थी तो क्या पता है आपको. तो basically principles of design, color schemes, color psychology, these are the theoretical topics which should be very well taught to you by some architect. Okay, next is positive and negative shapes का knowledge and some secret tricks which we give to our student, जिसकी वजह से सारे बच्चे बहुत अच्छा 2D composition बना लेते हैं because we have cracked how to make good 2D compositions. ठीक है, तो अगेन वो एक वीडियो में तो मैं बता भी दूँ तब भी आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे. So for implementing what I am telling you, you have to have an individual discussion which we are going to have very soon for free. तो अभी 2 मिनट रुक जाओ, मैं बताऊंगी कि आप मुझसे individually कैसे interact कर सकते हो. Okay, so here you can see again some 2D compositions. तो color scheme देखो, coloring देखो, balance देखो, symmetry देखो, rhythm देखो. Okay, here also analogous color scheme. Again there is a color scheme. कमेंट करके बताओ कि इसमें कौन सा कलर स्कीम है. ठीक है, here you can again see these kind of compositions. So all the compositions are very different, but it's very simple to think about these compositions once you have read the theory of design, theory of colors, theory of understanding what is balance, what is rhythm, what is symmetry and how to use it in the sketches. तो बहुत easy हो जाता है. ठीक है, दिस इज अगेन. तो आपको ऐसे 2D कॉम्पोजिशन गूगल पे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसे 2D कॉम्पोजिशन आप तभी बना पाओगे व्हेन यू हैव गुड नॉलेज. ठीक है, और काफ़ी लोग क्योंकि बाकी कोचिंग्स में आर्किटेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, तो आर्किटेक्ट को ही पता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन वगैरह क्या होते हैं मे बी. तो ये नॉलेज ही बेसिकली बहुत ज़्यादा लिमिटेड है. ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि इसमें सीखना कैसे है और सिखाना कैसे है वो भी नहीं पता होता. ठीक है, फॉर 3D कॉम्पोजिशन अगेन यू हैव टू नो पर्सपेक्टिव स्केचिंग, आइसोमेट्रिक स्केचिंग, कलर पेंसिल, शैडो फॉर्मेशन विच आई जस्ट शोड यू एंड अ लिटिल बिट ऑफ एस्थेटिक सेंस. तो हियर यू कैन सी. ठीक है ना, देख लो, पॉज करके आप आराम से देख सकते हो हाउ कलरिंग इज़ डन. लाइट अगर यहाँ से आ रही है तो ये वाले पार्ट सारे डार्क हैं होने चाहिए. ठीक है ना, तो इस तरीके से लाइट एंड शैडो का सोचना पड़ता है. शैडो की शेप देखो कितनी एग्जैक्ट आ रही है, जस्ट एज आई शो यू, राइट. तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक एग्जैक्ट शैडोज एंड सी ओवर हियर ऑल्सो. ठीक है, तो दिस इज अगेन इन पर्सपेक्टिव, इन 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव. सो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो एक पॉइंट पर्टिकुलर आएगा जहाँ पे ये मीट कर रहा है. तो दिस इज अगेन इन 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव. सो इफ़ यू हैव राइट टेक्निक्स, लाइट एंड शैडो, शैडो फॉर्मेशन, गुड कलरिंग, 3D कॉम्पोजिशन आपका कहीं नहीं जा रहा. ठीक है, पोर्ट्रेट्स आप देख सकते हो. सो पोर्ट्रेट मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, बिकॉज पोर्ट्रेट की मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो अभी डाली थी कुछ टाइम पहले ही, मैं लिंक कर दूंगी आई बटन में. तो दैट वाज अ वेरी गुड वीडियो एंड आई एक्चुअली एक्सप्लेन्ड यू गाइज हाउ टू मेक पोर्ट्रेट्स फ्रॉम एनी पर्टिकुलर एंगल. सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, आपका पोर्ट्रेट का पार्ट भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट मी शो यू हाउ वी प्रिपेयर द स्टूडेंट्स. दैट इज़ वेरी यूनिक एंड दिस इज़ वाई ऑल आवर स्टूडेंट्स आर गेटिंग वेरी गुड रैंक्स इन JEE आर्क एग्जामिनेशन. एंड सबकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है और ऑलमोस्ट एक ही लेवल की हो जाती है, चाहे वो कम स्किल्ड हो या ज़्यादा स्किल्ड हो, बिकॉज की टेक्निक सेम है तो लेवल भी ऑलमोस्ट सेम हो जाता है. थोड़ा बहुत डिफरेंस तो डेफिनेटली होता ही है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी टीच द स्टूडेंट्स. बेसिकली वी प्रोवाइड आवर स्टूडेंट्स ऑल द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द क्लासेस. तो अगर आप पोर्ट्रेट की देखो तो ये सारे सेशंस हैं, लाइव सेशंस, राइट. तो 10 to 15 live sessions are required to only teach the portrait part. One live session is of 1 to 1.5 hours. तो कम से कम आपके 11-12 hours की स्टडी रिक्वायर्ड होती है. इसमें हम कुछ बना के नहीं दिखाते, सिर्फ टेक्निक बताते हैं कि पोर्ट्रेट को बनाने का टेक्निक क्या होता है, एंड देन यू विल फाइनलाइज द पोर्ट्रेट फ्रॉम योर ओन साइड, राइट. तो हर रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, आप बार बार देख सकते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो इवन आफ्टर अटेंडिंग द लाइव सेशंस. तो ये सारे लाइव सेशंस ही होते हैं, बट वी प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग विच इज़ द बैकअप रिकॉर्डिंग. Okay, so pencil coloring, vehicles, vegetations, how to draw 2D composition, 3D compositions, portraits, 1 point perspective, and next is our practice tests. So here you can see
that we are providing a lot of practice tests to students, even JEE previous year exact questions, और ये टाइम बेस्ड होता है. तो जैसे कि आपने ये टेस्ट खोला, प्रैक्टिस टेस्ट 1 ऑफ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, राइट. तो सो व्हेन यू आर बेसिकली, सपोज आई एम गोइंग टू द स्टूडेंट व्यू, तो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है. वेट अ सेकेंड. So you will see something like this. So you can see the time limit is 75 minutes and then क्योंकि एग्जाम में भी इतना ही टाइम मिलता है, ठीक है. 100 मार्क्स का है और 2 क्वेश्चन है. सो व्हेन यू विल क्लिक ऑन टेक द क्विज, यू कैन सी द टाइम लिमिट इज रनिंग ओवर हियर. 1 hour 14 minutes का टाइम लिमिट है. 1 घंटे में आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. 15 मिनट अपलोड करने के लिए वी गिव, राइट. सो देयर आर 2 क्वेश्चन, सो यू कैन रीड द 2 क्वेश्चन, यू कैन चूज अ फाइल, जो भी आपने स्केच बनाया उसको चूज करके यहाँ डालो, एंड दैट विल कम टू द टीचर. द टीचर विल ग्रेड द स्केच बाय लुकिंग एट द स्केच, और कमेंट भी देंगे, और क्लास में भी इंडिविजुअल डिस्कशन होता है अबाउट ऑल द स्केचेस पर्टिकुलरली. तो आपकी टाइम बेस्ड प्रैक्टिस हो जाती है, और जब आप टेस्ट स्टार्ट करोगे तभी आपको क्वेश्चन दिखता है. तो दैट इज़ अ वेरी गुड वे टू प्रिपेयर एग्जैक्टली फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द ड्राइंग पार्ट. दिस इज हाउ वी प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, एक्चुअली नॉट ओनली फॉर ड्राइंग, पर हर सब्जेक्ट के लिए. बट आज की वीडियो में चलो सिर्फ ड्राइंग की बात करते हैं. तो यार इतना सब कुछ होता है, बट आई बिलीव दैट अनलेस एंड अनटिल यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी आस्किंग द क्वेश्चंस, nothing can be learnt in a good way, right? So there's a very good news. Sketch School of Art and Creativity is organizing a 3 days master class. समझ गए? तो यार मिस तो बिल्कुल भी मत करना, एंड इट्स कम्प्लीटली free of cost. So we are organizing 3 days master class completely free of cost, and you can ask your doubts. Particularly classes होंगी aptitude part for NATA and JEE, ड्राइंग पार्ट फॉर JEE एंड JEE मैथमेटिक्स. इन तीनों सब्जेक्ट्स पे आपकी क्लास होगी विथ कंप्लीट गाइडेंस ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली, राइट. सो इफ दिस वीडियो, यू लाइक दिस वीडियो, इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू, तो आपको मास्टर क्लासेस तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है. अब इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, यू सिंपली हैव to click on the link which is mentioned in the description box below. एक WhatsApp का लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली हमें WhatsApp पे मैसेज कर पाओगे, और अदरवाइज यू कैन जस्ट सेव दिस नंबर विच इज़ देयर ऑन द स्क्रीन एंड जस्ट मैसेज अस ऑन WhatsApp that I want to join the free master classes, and you can enroll for the free मास्टर क्लासेस. ठीक है, तो यार क्लासेस में मिलते हैं बहुत ही जल्द, आपको बहुत मज़ा आने वाला है. ये वीडियो आपको पसंद आई तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करो, एंड नीचे कमेंट करके मुझे बताओ दैट विच स्केच इन दिस वीडियो डिड यू लाइक द मोस्ट. ठीक है, तो देखते हैं कि किसको सबसे ज़्यादा कौन सा स्केच पसंद आया. एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या कर रहे हो, मतलब अब तक सब्सक्राइब नहीं किया. वीडियो इतनी अच्छी अच्छी आने वाली हैं, बहुत हेल्पफुल. सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय एवरीवन.